Assalamu alaikum. Walaikum salam, sir. Walaikum salam, sir. Okay, so welcome to the class of microwave engineering. Okay, so let's continue our today's lecture. So today we are going to talk about first what is known as, or I will just give it a general description, and that is polarization. Polarization of electromagnetic waves. So in our previous lectures, we have found that electromagnetic wave, when it propagates in a unbounded media, it propagates in a particular manner, and we mathematically prove that electric field vector, magnetic field vector, and direction of propagation vector, they will always be mutually perpendicular. So as an example, if electric field is in x direction and wave is propagating in z direction, then magnetic field must be in the y direction. This is the behavior of electromagnetic wave. Now, this polarization terminology, which you might have heard before, maybe in EMF course or maybe some other communication relevant course, electromagnetic waves, they are characterized by their polarization behavior. Okay. So whenever we refer to the polarization of electromagnetic waves, so actually we are talking about some behavior of electromagnetic wave. So what is that behavior in a general form? And then what are the possible types of polarization that we will talk about in today's lecture. So we can define polarization in a number of ways. So one possibility of defining polarization of wave is the polarization of electric field refers to orientation of the electric field vector as a function of time. This is one possible definition of polarization. So what are the main points? So polarization of wave, it refers to electric field vector as a function of time. So whenever electromagnetic wave is propagating, so the electric field vector, its behavior with respect to time is actually polarization. So there are a number of possibilities that is why I mentioned that there are number of types of polarizations. So whenever electromagnetic wave travels, so there are a number of possibilities for the electric field vector to change as a function of time. And based on that, we can define
some standard types of polarizations. But before talking about the types of polarization, let me define polarization in a different manner. Okay. So, or let me write it down and then I will explain its concept. So polarization means the figure traced by the tip of the electric field vector as a function of time. So now what I have done is I have defined polarization in terms of some hypothetical figure that will be traced by the tip of the electric field vector. Of course, it's not possible to actually see the electric field vector. We cannot see electric field vector. So how we will find out what type of figure is traced by the electric field vector? So it means this second definition of polarization is kind of visualization. Okay, you have to visualize that there is an electromagnetic wave and you are able to see electromagnetic wave, you are able to see the electric field vector, and then you see that electric field vector, it is changing with respect to time, and how it is changing as a function of time, that can be represented in terms of some kind of a figure that is formed by the tip of the electric field vector. Okay. So once we will define types of polarization, then this definition will make more sense. Okay, but this is how if someone asks you what is the meaning of polarization, so these are two possible ways by which you can answer this question. So let's talk about types of polarization. So the first one is known as linear polarization. Then we have circular polarization. And third one is known as elliptical polarization. And we use abbreviated form for this. So linear polarization will be represented as short form as LP. This is CP, and this is EP. So these are three possible polarizations. So let's discuss them one by one. So what is the meaning of linear polarization? Or in other words, if we say that electromagnetic wave is linearly polarized, so what is the behavior of that kind of wave? So I will be using the second definition, which is the figure traced by the tip of the electric field vector as a function of time. Okay, so in linear polarization, as the name suggests, linear. So in this type of polarization, the tip of the electric field vector will form a line. The tip of the electric field vector will form a line. So as an example, if there is an electromagnetic wave and electric field vector is with respect to time, okay? So let's say that electric field vector is pointing in this direction. So this arrow is representing
electric field vector. The arrow is representing the direction, and the length of this vector is representing the magnitude of the electric field. So this is the electric field vector at some particular time. Now, as time progresses, what happens is that this electric field vector, it's after some time, it is like this. So now this is the electric field vector. After some time, this is the electric field vector. So you can see that the tip of the electric field vector, it is forming a line. So you can see this is line. So electric field vector is forming a figure, and that figure, tip of the electric field, it is a line. So if you have this kind of a situation, then it means that we are dealing with a linearly polarized wave. Now, I have just explained this concept in terms of an example, but that doesn't mean that if electric field vector will always be pointing vertically. Another possibility is that electric field vector may be oriented like this. So there is a possibility that electric field vector at some time is like this, and then it is changing like this. So in this case as well, you can see the electric field vector is forming a figure, and that figure is a line. So this is also a line. So this is also a linear polarized wave. This is also a linear polarized wave. Similarly, this line can be in any direction. Okay, so it means that you can say that the electric field vector is like this. So you can see it is in a random direction, but it is still the electric field vector is forming a figure, and that figure is a line. So whenever you have this kind of wave, we call it is a linear polarized wave. Let's talk about. We will also talk about what are the conditions. For example, if electromagnetic wave is showing linear polarized behavior, so what condition is fulfilled by a wave? Or I can put it another way, that if I want to generate a linearly polarized electromagnetic wave, then what should I do? What condition I need to satisfy so that the electromagnetic wave is linearly polarized? That we will talk about in a short while. Right now, I'm just giving you the visual explanation of these three types of polarizations. Okay. Now, just 1 minute. Okay, sorry for some interruption. Circular polarization. What type of wave will have a circular polarized behavior, or how we can visualize it? So, as the name suggests, as the name is suggesting, it's circular. So, if you go back to the second possible definition that I have used for describing polarization, that is figure traced by the tip of the electric field vector as a function of time. So in circular polarization, the electric field vector will trace out a circle with respect to time. So ग्राफिकली ये कैसे नजर आएगा अगर इसको हम विजुलाइज करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है
लेट्स से एट t इक्वल टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इस तरह, एट t इक्वल टू 0, एंड एज टाइम प्रोग्रेसेस व्हाट हैपेंस कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने बनाया है, ये इसकी जो वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है अब इस तरह होगा, ये कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह होगा, फिर कुछ टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरह होगा. So as time progresses, the electric field vector is behaving like this. और इस तरीके से दोबारा. अब इसमें अगर आप देखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का टिप है वो ये है, इसको अगर हम विजुलाइज करें कि ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो टिप है ये किस किस्म की फिगर इससे बन रही है. So it may not be exact circle, but the idea जो मैं आपको देना चाह रहा था वो ये जो आपके पास है ये अब आपके पास सर्कुलर पोलराइज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरह की फिगर बन रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सर्कल की शेप बन रही है. तो इस किस्म की वेव की पोलराइजेशन को हम कहेंगे कि ये सर्कुलर पोलराइज्ड वेव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज काइंड ऑफ रोटेटिंग. इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इफ इट इज अ सर्कुलर पोलराइज्ड वेव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है टाइम के साथ वो सर्कुलेट कर रहा होगा, जो इस तरह ग्राफिकली आपको नजर भी आ रहा है. So as wave propagates, the electric field vector associated with that wave will be kind of rotating in a circular fashion. So ये इससे circular polarization behavior, which is totally different than यहाँ पे जो मैंने आपको linear polarized behavior बनाया. इस फिगर में आपको नजर भी आ रहा है कि what is actually happening कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इसी लाइन के अक्रॉस चेंज हो रहा है. It is of course it is changing its डायरेक्शन एज वेल, बट इट इज स्टिल जो फिगर बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो इस लाइन के अक्रॉस वेरी कर रहा है, इट इज नॉट रोटेटिंग. So this is linear polarized behavior. And then finally we have elliptical polarization. Elliptical polarization behavior क्या होगा? So इसका ताल्लुक अगेन आप ज्योमेट्रिकल से डिनोट कर सकते हैं कि इलिप्स के साथ इसका ताल्लुक. So इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर उसको हम ट्रेस आउट करें तो हमें ऐसे लगेगा एज इफ कि वो एक रोटेट कर रहा है, लेकिन जो शेप बन रही है वो इलिप्स की तरह बन. ठीक है. तो अगर हम एक रफ सी मैं इसको बना लेता हूँ कि लेट्स से कि ये आपके पास एक इलिप्स, सो इस केस में क्या होगा, ये मैंने फिगर ट्रेस पहले से कर दी है, लेकिन एक्चुअली ये फिगर बनी कैसी है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव है जो कि इलिप्टिकल पोलराइज्ड बिहेवियर शो कर रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरह चेंज हो रहा है. So at some time, let's say इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ चला गया, फिर इस तरह हो गया, फिर ये हो गया, something like this. So इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर हम देखें टाइम के साथ जो रोटेट कर रहा है और जो रोटेशन के बाद जो अगर हम टिप को ज्वाइन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कि किसने किस तरह का पाथ ट्रेस आउट किया, तो हमें नजर आएगा कि एज इट इज इलिप्स की तरह की शेप बनी है. तो ये आपके पास इलिप्टिकल पोलराइजेशन भी है. So now we have defined के जो polarization of electromagnetic wave है जिसका ताल्लुक orientation of electric field vector के साथ as a function of time, इसके बेस पे हमारे पास तीन possibilities हो सकती हैं. Linear polarized wave, circular polarized wave and elliptical polarized wave. और उसका मैंने आपको graphical representation बता दी है कि linear polarized wave का behavior क्या होगा. लीनियर पोलराइज्ड वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस तरह का बिहेवियर शो करेगा. अगर वेव सर्कुलर पोलराइज्ड वेव होगी तो उसका उसका जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा उसका बिहेवियर किस तरह होगा. और फाइनली इलिप्टिकल पोलराइजेशन बिहेवियर क्या होगा. नाउ इसमें आप इसको फर्दर इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं कि जो इलिप्टिकल पोलराइजेशन है ये एक जनरल पोलराइजेशन है. ठीक है. तो जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पोलराइजेशन बिहेवियर होगा वो जनरल वो क्या होगा, इलिप्टिकल पोलराइजेशन. तो ये आपके पास जनरल केस है.
जो लीनियर और सर्कुलर हैं ये स्पेशल केस है। ये आपके पास क्या है? स्पेशल केसेस। तो जनरली जो पोलराइजेशन बिहेवियर है वो एलिप्टिकल होगा और उसके स्पेशल केसेस होंगे लीनियर और सर्कुलर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो मैंने बात की थी कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर पोलराइज बिहेवियर शो कर रहा है या सर्कुलर कर रहा है या एलिप्टिकल कर रहा है, ये बिहेवियर किस वजह से है, जिसको मैं कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस? तो पहले हम लीनियर पोलराइजेशन की बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लीनियर पोलराइज बिहेवियर शो करेगा तो उसके लिए क्या ज़रूरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसको मैं नंबर पे देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हैज ओनली वन कंपोनेंट। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, लेट्स से या ई एक्स है या सिर्फ ई वाई है या सिर्फ ई जेड, तो इस केस में बिहेवियर क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एज एन एग्जांपल अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही वेक्टर कंपोनेंट है वो, और वो ई एक्स, सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका बिहेवियर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिर्फ हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एक्स। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्सिस है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है इसी लाइन के अक्रॉस होगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का बिहेवियर देखेंगे उसका मैग्नीट्यूड कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, बट इट विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब है कि ये किस किस्म का बिहेवियर होगा? लीनियर होगा। नाउ दैट डजंट मीन कि ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर एक ही कंपोनेंट होगा तो फिर ही लीनियर पोलराइजेशन बिहेवियर शो होगा, ठीक है। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी एज वेल। इलेक्ट्रिक फील्ड हैज टू कंपोनेंट्स। लेट्स से हमारे पास ई एक्स भी है और ई वाई भी है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट भी है वाई कंपोनेंट भी है तो फिर लीनियर पोलराइज बिहेवियर कैसे होगा? इसके साथ मैं ऐड कर लेता हूँ हैज टू कंपोनेंट्स एंड and they are and they have phase difference and they have phase difference delta phi equal to multiple of pi, multiple of pi. So एक तो कंडीशन ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट है तो वेव का पोलराइजेशन बिहेवियर हमेशा क्या होगा? लीनियर ही होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से एक एक्स भी है ई वाई, इस केस में भी लीनियर पोलराइज्ड बिहेवियर शो हो सकता है। अगर उसके लिए क्या जरूरी है कि इन दोनों कंपोनेंट्स का जो फेज डिफरेंस वो मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अब अगर आप एन को देखें, इंटीजर है 0 1 2 3 4, तो अगर आप इसको पुट करें, एन को 0 पुट करें तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ई एक्स और ई वाई दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इन फेज होने चाहिए। अगर हम एन को 1 पुट करेंगे तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा।
सो अगर EX और EY में फेज डिफरेंस पाई के बराबर है, इसका मतलब है कि दे आर आउट ऑफ फेज। इस केस में भी लीनियर पोलराइज्ड बिहेवियर होगा। अगर हम इनको 2 पुट कर लेंगे तो फेज डिफरेंस 2 पाई हो जाएगा। नाउ 2 पाई इज द सेम एज 0 एंड अगेन यू पुट 3 पाई, 3 पाई इज द सेम एज पाई। इसका मतलब है कि अगर इसको हम फर्दर देखें, n पाई का मतलब ये है कि अगर EX और EY दोनों इन फेज होंगे या EX और EY दोनों आउट ऑफ फेज होंगे, इन दोनों केस में जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, लीनियर। ठीक हो गया। कैसे होगा इसको भी मैं फर्दर क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि अगर हम इसको इस तरह देखें कि मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के दोनों कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस को शो कर लेते हैं और ये वाई एक्सिस है। तो अलग EX भी है और EY भी, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये इन फेज होने चाहिए। ठीक है, इन फेज का मतलब है कि जब EX इज एट इट्स मिनिमम वैल्यू तो EY भी अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा, और जब EX किसी भी टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगा उस टाइम पे EY भी मैक्सिमम होना चाहिए। दिस इज व्हाट वी से कि इन फेज होना चाहिए। मैं पहली एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, कि अगर हम कहें कि n को 0 ले लेते हैं तो फिर फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक हो गया। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, बट द एक्सप्लेनेशन इज वैलिड फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास इन फेज कंडीशन। अब इसको मैं जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि EX और EY दोनों की मिनिमम वैल्यू 0 के बराबर है। ठीक है, बट अगेन यू कैन टेक एनी अदर पॉसिबिलिटी, इज नॉट नेसेसरी कि दोनों का मिनिमम और मैक्सिमम सेम होना चाहिए। मेन पॉइंट क्या है कि इनको फेज में होना चाहिए। ठीक है, जब EX अपने मिनिमम वैल्यू पे हो, EY भी अपने मिनिमम वैल्यू पे होगा। जब EX अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो EY भी मैक्सिमम पे होगा। दैट इज जनरल डिस्क्रिप्शन। मैं इस वक्त एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि EX की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी 0 है और EY की मिनिमम वैल्यू भी 0 है। सो लेट्स अज्यूम कि एट सम टाइम EX भी 0 है, EY भी 0 है। तो ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में हमारे पास EX है, इस डायरेक्शन में EY होगा। सो दोनों 0 हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे होंगे। ठीक हो गया। अब एज टाइम प्रोग्रेसेस EX इंक्रीज होगा तो EY भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इन फेज कंडीशन है। तो लेट्स से कि EX इंक्रीज होके ये हो गया, तो ये एरो जो है EX को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एट द सेम टाइम EY भी इंक्रीज हो जाए, EY सॉरी, तो ये EY हो गया। अब EX और EY ऑफ कोर्स ये तो कंपोनेंट्स हैं, जो एक्चुअल वेक्टर है वो तो E है, तो वो कहाँ पे होगा, वो आपके पास यहाँ पे होगा। अगर आप इसको हेड एंड टेल रूल से करें तो एक्चुअल जो वेक्टर होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक होगा, ये मेरे पास वेक्टर होगा। अब क्या होगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो लेट्स से कि EX और भी इंक्रीज हो गया, तो लेट्स से EX यहाँ पे चला गया। एज अ रिजल्ट क्योंकि दोनों इन फेज हैं तो EY भी इंक्रीज हो जाएगा, और अब ये जो मेरा वेक्टर है ये अब यहाँ पे चला जाएगा। EX और भी बढ़ गया, EY भी बढ़ गया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे चला गया। ठीक हो गया। अब हो सकता है कि EX जो है वो नेगेटिव हो जाए। EX जब नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा, अब क्योंकि इन फेज है तो EY भी नेगेटिव हो जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इस तरीके से अगर आप देखें, जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, जिसको भी मैं एक और कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है जो कि इस लाइन के अक्रॉस वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, अगर आप इसको देखें कि जो हमने लीनियर पोलराइजेशन की डेफिनेशन की है, जो ग्राफिकली आपको नजर आ रही है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शुड बी ट्रेसिंग अ लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर शुड बी ट्रेसिंग अ लाइन, उसके बेस पे भी आपको नजर आ रहा है कि ये अब आपके पास किस किस्म का बिहेवियर है, लीनियर पोलराइज्ड बिहेवियर। सो दीज आर necessary conditions for linearly polarized wave. Okay, इस तरीके से मैं सर्कुलर की तरफ चला जाता हूँ कि अगर एक वेव सर्कुलर पोलराइज्ड बिहेवियर शो कर रही है तो कौन सी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होना जरूरी है। तो आई विल से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मस्ट हैव 2 कंपोनेंट्स। तो एक कंपोनेंट अगर हो तो उस केस में सर्कुलर पोलराइज्ड वेव जनरेट नहीं हो सकती। सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए जरूरी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसके 2 कंपोनेंट्स। एंड अगेन एज एन एग्जांपल कंसीडर हम कर लेते हैं कि EX भी है और EY भी है।
तो दो कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, और साथ में अगेन मैं इसके साथ ऐड कर लेता हूँ कि ये एंड में वर्ड यूज कर, ठीक है। इट मीन्स के सिर्फ दो कंपोनेंट्स का होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके साथ में कुछ और कंडीशंस भी ऐड करनी पड़ेंगी। वो क्या है? बोथ कंपोनेंट्स मस्ट हैव सेम एम्पलीट्यूड, and by amplitude I mean maximum magnitude. मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, इट मींस के EX का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होगा वो EY के मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि मैं इसके मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को अगर कहूँ कि EX 0 कह लेते हैं, तो वो EX 0 जो है EY 0 के बराबर होना चाहिए। दिस इज द मीनिंग। और साथ में ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो, सेकेंड क्या हो गया? थर्ड वन हम इसके साथ फेज की बात भी कर लेते हैं। फेज डिफरेंस, phase difference between two components must be odd multiple of pi by 2। इसको आप डिग्रीज में लिखें तो which means 90 डिग्री, so pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। so सर्कुलर पोलराइजेशन बिहेवियर के लिए जरूरी है कि ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इट शुड हैव टू कंपोनेंट्स, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सॉरी एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, और दूसरा इनमें फेज डिफरेंस मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के बराबर। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट विल शो यू सर्कुलर पोलराइज्ड बिहेवियर। इसको अगर हम विजुलाइज भी कर लेते हैं, तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि दोनों कंपोनेंट्स हैं। सो मैं अगेन एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेट्स एक्स है, ये वाई है, तो हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स हैं, ई एक्स भी है और ई वाई। ई एक्स जो है इस एक्सिस के अलोंग होगा और लेट्स से ई वाई इस एक्सिस के अलोंग। अब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एक तो, और दूसरा फेज डिफरेंस के हवाले से कि लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि हम सिंपल फर्स्ट मल्टीपल ले लेते हैं, तो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। सो वी नो कि अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो वो कौन सा फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं ई एक्स की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को और ई वाई की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इस तरह के दोनों में फेज डिफरेंस 90 है। So we already know that sine function and cosine function they have a phase difference of 90. Sine function and cosine function, ठीक। So let's assume कर लेते हैं कि ex जो है वो वेरी कर रहा है as cos function, और जो ey है उसकी वेरिएशन साइन फंक्शन को फॉलो कर रही है। सो इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस 90 हो गया। अब इसको मैं ग्राफिकली शो कर रहा हूँ कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो जब ex लेट्स से कि जब ex मैक्सिमम होगा तो ey 0 होगा, ठीक है ना। ex अगर मैक्सिमम होगा तो लेट्स से कि ex जो है मैक्सिमम, और यहाँ पे तो जब ex मैक्सिमम है, सबको साइन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है, तो वी नो कि साइन फंक्शन 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि ey जो है वो 0 के बराबर होगा। सो ey विल बी समवेयर ऑन, तो ये हमारे रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा इस वक्त। नाउ एज टाइम प्रोग्रेसेस व्हाट विल हैपन, क्योंकि कोसाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं, कोसाइन फंक्शन मैक्सिमम था, अब टाइम बढ़ेगा तो कोसाइन फंक्शन डिक्रीज होगा और साइन फंक्शन इंक्रीज होगा। सो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ex का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ey का मैग्नीट्यूड जो कि 0 था अब कुछ बढ़ जाएगा। लेट्स से ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये मूव करके अब यहाँ आ जाएगा। जैसे टाइम फर्दर इंक्रीज होगा ex का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा, ey का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो है इस तरह। जब ey मैक्सिमम हो जाएगा, जब यहाँ पे हम होंगे, ex क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा।
let me finish this session and then I will take call. Okay, so the idea is कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को अगर आप इस तरह फॉलो करें, अगर वो साइन और कोसाइन फंक्शन के हिसाब से वेरी कर रहा है, तो यू विल सी कि हमारे पास जो फिगर ट्रेस आउट हुई है, ये देखिए, ये सर्कुलर पोलराइजेशन। सो अगेन ये कंडीशन भी मैंने अब यहाँ पे यूज कर ली है कि जब ये आप देखें कि ये जब EX, ये जो है ये EX का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, तो ये EX 0 है, और ये जो है ये आपके पास EY का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, जो कि दोनों बराबर है। सो नाउ यू नो कि इन दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये बराबर नहीं होगा तो हमारे पास सर्कल नहीं बनेगा। ठीक है, तो सर्कल बने उसी वक्त ही बनेगा कि ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो, बराबर। Now, these are two polarizations जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस कोर्स के हवाले से, लेकिन क्योंकि मैंने इलिप्टिकल को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो इलिप्टिकल को भी मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ इसी स्लाइड में कि अगर हमारे पास इलिप्टिकल पोलराइजेशन है, डिफरेंस क्या होगा, इलिप्टिकल और सर्कुलर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो पहली कंडीशन तो वही है कि इलेक्ट्रिकल वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होने चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे हम लिखेंगे बजाय सेम होने के हम लिखेंगे मस्ट हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, ये बराबर नहीं होने चाहिए। और फेज डिफरेंस की कंडीशन वही। एंड नाउ ये इट्स ऑब्वियस टू यू कि ये कंडीशन होगी तो इससे क्या होगा, ये जो फिगर बनेगी वो सर्कल नहीं बनेगा बल्कि इलिप्स बनेगा, क्योंकि अब आपके पास मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। तो समथिंग लाइक दिस, अगर हम एक्स एक्सिस को देखें, ये एक्स है, ये वाई। सो हम अज्यूम कर लेते हैं कि EX का जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम इतना हो सकता है, तो ये EX 0 है, और EY का जो एम्पलीट्यूड है वो इतना है। तो यू कैन क्लियरली सी कि EY का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। जब ये फिगर बनेगी तो आपके पास इस तरह की फिगर बनेगी, समथिंग जिसको फिर आप इलिप्टिकल पोलराइजेशन। So this was all about polarization and its different types. Graphical representation भी मैंने आपको बता दी है, और जो necessary conditions हैं वो भी मैंने आपको बता दी। ठीक हो? So let's continue this discussion in the next session.